Hello students, my name is Seema Jain and I am faculty of pharmacy Vishweshwaraya Group of Institution Dadri. Today I am going to discuss a very important topic of B.Pharm first year and D.Pharm second year. The name of the topic is prescription. चलिए जानते हैं what is prescription. A prescription is a written order that is given by a doctor or any other registered medical practitioner such as dentist or veterinarian to pharmacist for compounding and dispensing the medication for the patient. आप सभी को पता है जब भी हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास. डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है और डायग्नोज करने के बाद जो भी आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर लिख कर आपको देता है. उसी फॉर्मेट को हम कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन. जनरली द प्रेस्क्रिप्शन इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज but abbreviations and Latin terms are frequently used by the doctor or prescriber to save the time. So the pharmacist who is going to handle this prescription should also be aware with all these kinds of abbreviations and Latin terms. Pharmacist को भी ये सारे Latin terms और abbreviations की meaning पता होनी चाहिए. For example, the frequently used Latin terms and abbreviations are, first is SID. The full form of SID is Samel in die. The meaning of Samel in die is once a day. Means you have to take this drug only once a day. आपको एक ही बार इस दवाई को लेना है. Second is BID. BID, the full form of BID is bis in die. And the meaning of BID is twice a day. 2 times a day. You have to take this medication 2 times a day. Third one is TID. The full form of TID is ter in die and the meaning is thrice a day. You have to take this drug 3 times a day. In the same manner, doctor used to write PC. The full form of PC is post cibos, meaning is after the meal. आपको ये medication after meal लेनी है. And AC is anti-cibos. The meaning is anti-cibos. You have to take this medication before the meal. So these are the frequently used terms by the doctors on a prescription. Now we will discuss various parts of prescription. एक prescription पे बहुत सारे parts होते हैं जिनमें से कुछ printed form में होते हैं और कुछ doctors अपनी तरफ से add करता है. These parts are, first one is date, then name, age, gender and address of the patient, then superscription and inscription, then subscription, signature, renewal instruction, signature, address and registration number of the prescriber. These all 8 are the parts of prescription. Now we will discuss these all parts one by one. First part of prescription is date. Why date is necessary? Date helps a pharmacist to find out the date of prescribing a prescription or date of visiting a patient to a doctor. एक पेशेंट डॉक्टर के पास कितनी बार आया वो सारी डेट डॉक्टर मेंशन करता है. डेट शुड बी मेंशन एट द टॉप ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन. डेट को आप प्रेस्क्रिप्शन के टॉप पर मेंशन करते हो. सेकेंडली, व्हाई डेट इज नेसेसरी? Because if the doctor is prescribing some habit forming drug to patient, sometimes patient misuse of these all narcotic and psychotropic drugs because these are habit forming drugs. After complete recovery, patient इन ड्रग्स का यूज़ करता रहता है क्योंकि वो उस ड्रग्स का हैबिचुअल हो चुका है. तो अगर डॉक्टर को पता है आफ्टर कंप्लीट रिकवरी ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर कैन डिसकंटिन्यूज ऑल दीज काइंड्स ऑफ मेडिकेशन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ दीज ड्रग्स. इन ड्रग्स का मिसयूज ना हो इसलिए डॉक्टर इस प्रेस्क्रिप्शन को कंटिन्यू करना बंद कर देता है. जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन पे लिखेगा ही नहीं मेडिकेशन तो वो पेशेंट उस ड्रग को मेडिकल स्टोर से ले भी नहीं सकता. सेकेंड पार्ट इज नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. प्रेस्क्रिप्शन पर आप नेम, एज और पेशेंट का जेंडर भी मेंशन करते हो एट द टॉप. व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी? नेम सर्व्स द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट. नेम बहुत ज़रूरी है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये प्रेस्क्रिप्शन किसका है. ओके.
Now, second, age and gender of the patient. Age or gender is also necessary part of prescription. Age and gender of the patient, especially in case of children, helps the pharmacist to check the prescribed dose of medication. Because सबको पता है कि जो the amount of dose in case of children is very less as compared to adult patient. जो चिल्ड्रन पेशेंट होते हैं उनका जो दवाई मेडिकेशंस होते हैं वो अमाउंट में बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट पेशेंट। इन सम केसेस वेट ऑफ द पेशेंट में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट डोज। कभी कभी हम चिल्ड्रन की एज के साथ साथ चिल्ड्रन का वेट भी मतलब कंसिडर करते हैं उसको मेडिकेशन देने से पहले। ओके, जो हमारे चिल्ड्रन पेशेंट होते हैं उससे आप बोलते हो पीडियाट्रिक पेशेंट्स, एंड जो आपके एडल्ट पेशेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जीरियाट्रिक पेशेंट्स। थर्ड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज सुपरस्क्रिप्शन। व्हाट इज सुपरस्क्रिप्शन? स्पेशली जो सुपरस्क्रिप्शन है इट इज अ सिंबल। सुपरस्क्रिप्शन इज अ सिंबल, इट इज रिटन बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। आप प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले RX लिखते हो। RX जो है वो आपका एक symbol है, it is represented by a symbol RX which is written before writing the prescription. RX is an abbreviation of Latin word. The meaning of this Latin term is recipe. The meaning is you take. In olden days the symbol was considered to be originated from the sign of Jupiter, that is god of healing. This symbol was employed by the ancient इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो गॉड से प्रार्थना करते थे कि जो भी पेशेंट हो जल्दी ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो RX है जो कि एक जुपिटर का साइन है उसे प्रेस्क्राइबर्स मतलब जो वैद्य होते थे वो इसको प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले इसको लिखते थे RX, जिससे कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन आज हमारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमें पता है कि वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। सो इट ऑल शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशंस कि आप मेडिकेशन से ही ठीक हो सकते हो। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज इंस्क्रिप्शन। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अब आपका मेन पार्ट इंस्क्रिप्शन ही है विच कंटेन्स द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट। prescribers, what prescribers are prescribing to patient and how much he is prescribing। डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन और कितनी प्रेस्क्राइब कर रहा है, दीज ऑल आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ड्रग इज प्रेस्क्राइबिंग बाय अ डॉक्टर ही शुड मेंशन द नेम ऑफ दैट ड्रग। ओके, द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन अलॉन्ग विद इट्स क्वांटिटी। जो भी डॉक्टर्स नेम लिख रहा है मेडिकेशंस का, इट शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन। इस इंग्रेडिएंट को सेपरेट लाइन में लिखना कंपल्सरी है टू अवॉइड द मिसमैच ऑफ द नेम ऑफ द ड्रग। कहीं कोई ड्रग का नाम किसी दूसरे ड्रग के नाम से मिसमैच ना हो जाए, इसलिए आप उसको सेपरेट लाइन में नेम ऑफ द ड्रग एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग सेपरेट लाइन में आप लिखते हो। अदर पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इफ द फार्मासिस्ट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन। अगर फार्मासिस्ट बना रहा है एक्सटेम्पोरेरी प्रिपरेशन, ही नीड्स बेस, एडजुवेंट एंड व्हीकल। उसको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, बेस, एडजुवेंट एंड व्हीकल। व्हाट इज बेस? ये सारी बातें मैं बता रही हूँ कि इफ़ अ फार्मासिस्ट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, अगर फार्मासिस्ट कंपाउंड कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन को बना रहा है तब ही रिक्वायर्ड बेस, एडजुवेंट और व्हीकल। व्हाट इज बेस? The base is the main or therapeutic ingredient in the prescription। जो भी prescription है उसका जो main ingredient है that is base। Okay, second is adjuvant। Adjuvant is also known as additives। This is used either to enhance the action of medicament or to improve the palatability of the preparation। For example, coloring agent, flavoring agent, sweetening agents, preservatives, bulking agents, so many agents you can use as an additives। Next is vehicle। Vehicle you can use in both in case of liquid formulation and in case of solid formulation। If you are going to prepare a liquid formulation, you can use any liquid as an vehicle।
as a vehicle, and if you are going to formulate a solid formulation, you can use a solid vehicle. Okay, why vehicle use? Vehicle used to increase the volume of the formulation. If you are going to prepare a liquid formulation, then you can increase the volume by using some vehicle, and if you are going to prepare a solid formulation, you can use any bulk agent, any inert bulk agent to increase the volume, so that the preparation can be easy to handle. Okay, nowadays the majority of the drugs are prescribed which are already in a suitable formulation. इसका मतलब है कि आज के टाइम में डॉक्टर जो भी आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करता है वो आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में मेडिकल स्टोर से मिल जाती है. ओके, सो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड. मतलब जो डॉक्टर के पास फार्मासिस्ट आपकी मेडिकेशन को कंपाउंड करता है, बनाता है, डिस्पेंस करता है, वो पार्ट अब टोटली एलिमिनेटेड है, वो पार्ट अब नहीं होता है. ये सारे डोज फॉर्म आपको रेडीमेड प्रिपेयर्ड फॉर्म में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है. Fifth part of prescription is subscription. What is subscription? The subscription is the direction which is given by a prescriber to the pharmacist. मतलब what should be made and how much should be made. It also included the procedure, how to make the formulation. सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी प्रिस्क्राइबर है वो फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या बनाना है पेशेंट के लिए और कितने अमाउंट में बनाना है. इवन ही ऑल्सो प्रोवाइड द फॉर्मूला. डॉक्टर प्रिस्क्राइबर फॉर्मूला भी प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट को कि किस फॉर्मूला से आपको बनाना है कोई भी फॉर्मुलेशन. तो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज अ डायरेक्शन फॉर अ फार्मासिस्ट. ये फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन है फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर. नेक्स्ट इज सिग्नेचरा. व्हाट इज सिग्नेचरा? जैसे मैंने ऊपर बताया, सब्सक्रिप्शन इज द डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट. इन द सेम मैनर सिग्नेचरा इज द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट फ्रॉम द डॉक्टर और फार्मासिस्ट. ये डायरेक्शन है प्रिस्क्राइबर की तरफ से या फार्मासिस्ट की तरफ से पेशेंट के लिए कि उसे अब ड्रग कैसे कैसे खानी है. इट इज़ यूजुअली रिटेन एज सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. Okay, the instruction given in the prescription are required to be transferred to the container in which the medicament is to be dispensed. If अगर डॉक्टर चाहता है सारे इंफॉर्मेशन को पेशेंट को देना, तो वो उस कंटेनर के ऊपर एक लेबल के फॉर्म में भी सारी इंफॉर्मेशन जो कि डॉक्टर देना चाह रहा है पेशेंट को, वो लेबल के फॉर्म में भी लगा के दे सकता है पेशेंट को. आपने देखा होगा जितने भी मेडिकेशंस आप मार्केट से लेके आते हो, चाहे वो सिरप हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, उनके लेबल, उन सब पे एक लेबल लगा होता है जिस लेबल पे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग, लाइक नेम ऑफ द ड्रग, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग एंड ब्रीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ड्रग, यूजेस ऑफ द मेडिकेशन एंड एक्सपायरी डेट, सेल्फ लाइफ, स्टोरेज कंडीशन, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है आपके इन द फॉर्म ऑफ लेबल. Okay, what are these information? The quantity to be taken or amount to be used. कितनी क्वांटिटी पेशेंट को लेनी है एट अ टाइम. द फ्रिक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी बार लेनी है पेशेंट को. द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से लेना है पेशेंट को. वेरियस रूट्स आर देयर. इफ ओरल रूट होता है, आप दवाई को खाते भी हो मेडिकेशंस को. सुपरफिशियल रूट भी होता है, आप उसको लगाते भी हो. इंजेक्शन पेंटल्स भी होते हैं, तो रूट मेंशन करना भी is very mandatory. The special instructions such as dilution direction. अगर किसी मेडिकेशन को डाइल्यूट करना है तो वो इंस्ट्रक्शन भी प्रिस्क्राइबर बताएगा पेशेंट को इन द फॉर्म ऑफ लेबल या फिर वर्बली कि आपको कोई फॉर्मुलेशन डाइल्यूट करके यूज़ करनी है या आपको एज सच कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में से यूज़ करना है. सेवेंथ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस? The prescriber indicate on every prescription order whether it may be renewed and if so how many times. जितने भी प्रेस्क्रिप्शन होते हैं जो पेशेंट लेके आ रहा है डॉक्टर के पास, उसको डॉक्टर या प्रेस्क्राइबर रीन्यू करता है कि ये प्रेस्क्रिप्शन कहीं बहुत पुराना तो नहीं हो गया है, ये कितनी बार रीन्यू हुआ है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर किसी भी प्रेस्क्रिप्शन में कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, उस केस में डेट और उसको
रीन्यू करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर. The prescription must bear the signature of the prescriber along with its registration number and address. It is very important, particularly in the prescription containing the narcotic and habit forming drugs, to prevent its misuse.